मॉर्निंग दोस्तों, खुदा का फजल और उसका इत्मीनान आप लोगों को हासिल होता रहे और खुदा की बुजुर्गी और उसकी शफ़क़त में महफूज रहिए। और मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका यानी इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी खुदावन, तू जो जलील और कदूस नहायत रहीम और मेहरबान है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी तमाम तर अज़मत और कुदरत के लिए कि जिसके बायस खुदावन देख हम तेरी हजूरी में हाजिर हैं, तुझे इज़्ज़त और जलाल देते हैं, तेरी प्रस्तिश और तेरी ताज़ीम करते हैं और खुदावन इल्तिजा करते हैं कि तेरा रहम और फजल हम सबों की ज़िंदगियों में जारी और सारी रहे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और ये बड़ी ही अच्छी और ख़ूबसूरत हमारे लिए बात है कि हम अपने हर रोज़ का आगाज़ जो है, अपने दिन का जो आगाज़ है वो खुदा उनके बुज़ुर्ग और कादर मुतलक नाम के वसीले से करते हैं, उसकी हमदो तारीफ़ करते हैं। और मैं अकेला नहीं बल्कि आप सब मेरे साथ इस सारी मॉर्निंग डिवोशन में शरीक होते हैं। मैं खुदा उनका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ और खुदा उनसे मिन्नत करता हूँ कि खुदा उनका करम और रहम इसी तरह हम सबों पर जारी और सारी रहे, ताकि हम बड़ी खुशी के साथ खुदा उनकी प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो दोस्तों आइए मिलकर अपने बादशाहों के बादशाह और अपने खुदाबंदों के खुदा के नाम की ताज़ीम करते हुए, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, हौज़ हिल रहा है पाक रूह के ज़ोर से, कलाम का इल्हाम का पाक रूह के ज़ोर से। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ करें और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हालेलुया। हिल रहा है पाक रूह के ज़ोर से, ज़ोर से, ज़ोर से, ज़ोर से।
اس اچھی اور خوبصورت حمد و ثنا کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں، اور آئیے اپنے توجہ خدا کے بزرگ کلام کی طرف لگائیں اور اپنے ذہان کی تنویر کے لیے ہم خدا کے سامنے اس بات کے لیے ملتجی ہوں کہ خدا کا رحم اور اس کی حکمت و دانائی ہم سبوں پر ٹھہرے۔ لیکن اس سے قبل ہم خدا کے بزرگ کلام میں سے دیکھیں گے مقدس پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام تحریر کیا گیا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیات۔ اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ نہایت بزرگ، نہایت رحیم، قادر مطلق خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اور خدا التجا کرتے ہیں کہ تیری حکمت اور دانائی کے دروازے ہم سبوں پر کھلیں تاکہ ہم تیرے پاک کلام پر غور کریں اور خدا اپنی زندگی تیرے زندہ کلام کے اصولوں کے موافق بسر کریں، خدا یسوع کے نام میں، آمین۔ دوستو، خدا کی تعریف اور اس کی ستائش کرتے ہیں، اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس استحقاق کے لیے خدا کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اور ابھی جو 2 آیات میں نے مقدس پولس رسول کے خط میں سے آپ لوگوں کے لیے تلاوت کی ہیں، یہ بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں، اور اگر ہم ان آیات کے پس منظر کو اور ان آیات پر بغور توجہ دیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں ان آیات میں ہمارے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت اطمینان موجود ہے، اور اطمینان، تسلی، تشفی، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں، ان فیلنگز کا نام ہے، ان جذبات کا نام ہے کہ جو ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اپنے شاگردوں سے کیا تھیں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو بہت پہلے ہی سے آنے والے ان حالات و واقعات کے بارے میں آگاہی دے دی، اور خداوند نے ان سے کہا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب میرے نام سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ خداوند نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی وقت تمہیں دیکھنا ہوگا کہ جب لوگ تمہیں لان تان کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے اور عدالتوں میں گھسیٹیں گے اور حکمرانوں کے سامنے تمہیں لے جائیں گے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے ان کو ایک تسلی اور اطمینان کی خبر بھی دی، اور وہ پیغام کیا تھا کہ گھبرانا مت، ڈر مت جانا، کیونکہ اس وقت تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم نے کیا کہنا۔ اور خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ بھی بات پہلے ہی سے بیان کر دی کہ تمہارے بہت پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہارے مخالف ہو جائیں گے اور تمہیں دکھ پہنچائیں گے، تمہیں ضرر دیں گے۔ تو دوستو، اگر ہم مسیحت کی تاریخ کو دیکھیں تو مسیحت کی تاریخ ایسے بے شمار حالات و واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے معاملات، بہت سارے حالات و واقعات، اور بالخصوص پرسیکیوشن کے زمانے میں جب دیگر لوگ بڑی بآسانی گر گئے، وہاں پر مسیحی ایماندار خداوند یسوع مسیح کے ان تسلی بخش الفاظ کی روشنی میں قائم و دائم رہے۔ تبھی تو مسیحت اتنے دکھ اٹھانے کے بعد بھی اور شدید پرسیکیوشن میں سے گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پر آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے، اور اس بات کے لیے ہم یقیناً خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم دکھوں میں ان تمام تر حالات و واقعات کو دیکھتے، اس کو آبزرو کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی اپنے شاگردوں کو بیان کر دی، تو شاگرد جو ہیں اور اس کے بعد کی آنے والی کلیسیا جو ہے وہ پریشانی اور دکھ اور ٹوٹ جانے کے حالات و واقعات میں سے نہیں گزری، بلکہ ہوا کیا کہ استفنس کی طرح لوگوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ اور تسلی اور امید کا پیغام موجود تھا۔ کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اعمال کی کتاب میں ہم جانتے ہیں کہ جب استفنس کو سنسار کیا جانا تھا تو استفنس اس بات سے خوف زدہ نہیں تھا، تھر تھر اس کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھیں،
बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने रूह कुद्स से सरशार होकर, मामूर होकर अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और क्या देखा कि उसने आसमान को खुला हुआ देखा और कादर मुतलक के दाने हाथ पर किसको खड़ा हुआ पाया? यकीनन मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु मसीह को। और याद रखिए कि ये उसके लिए इंतहाई तसल्ली का पैगाम था। उसको पता था कि अब मेरी शहादत का वक्त आन पहुंचा, लेकिन उसके अंदर ये दिलेरी और ये तसल्ली और इत्मीनान मौजूद था कि अब मैं अपने खुदावन के पास पहुंचाया जाऊंगा। लिहाजा दोस्तों, हम खुदावन के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं और याद रखें कि बहुत सारे आज अपने इर्द गिर्द आप जब मसीही ईमानदारों को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे लोग आपको हकीकी इत्मीनान से सरशार लोग जो दिखाई देते हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में शदीद गम और शदीद तकलीफ का जमाना भी देखा होता है। और इसी हवाले से खुदा का एक बहुत बड़ा खादिम बिली ग्राहम, वो एक जगह पर फरमाते हैं और उन्होंने एक जगह पर कहा कि मैं अपनी जिंदगी में जितने ऐसे ईमानदारों से मिला हूं कि जो आज इंतहाई कंटेंटमेंट की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनके अंदर एक बड़ा ही अनोखा इत्मीनान मैंने देखा, लेकिन जब मैंने उनकी जिंदगियों को एक्सप्लोर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये सब लोग इंतहाई कसम पुर्सी की हालत में शदीद दुख उठाकर आज उस इत्मीनान को हासिल कर पाए हैं जो इन लोगों की जिंदगियों में कसरत के साथ मौजूद है। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावंद को इस हवाले से जानें और पहचानें तो हमें अंदाजा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के अक़वाल बड़े ही मीनिंगफुल हैं। दोस्तों, रद्द किया जाना, दुख उठाना, परसिक्यूशन में से गुजरना और ख़ास तौर पर अपनों के हाथों अजियत उठाना, ये इंतहाई कसम पुर्सी की हालत होती है कि जहां पर इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यही वक्त जो है ये हमारे खुदावन पर भी गुजरा और कलाम मुकद्दस ने उसकी शहादत इस तौर से दी। और कलाम मुकद्दस में क्या बात हम पढ़ते हैं कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत जानदार अल्फाज भी तहरीर किए गए और कहा गया कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया। और आज याद रखें कि हम भी जब बहैसियत मसीही इस जमाने में जिंदगी बसर करते हैं तो बहुत दफा हमें भी ऐसे ही तजर्बात का सामना करना पड़ता है कि जहां लोग हमसे बहैसियत मसीही अदावत रखते हैं, हमें लान तान करते हैं, बहुत कुछ बरखलाफ हमारे बोला जाता है। लेकिन याद रखिए कि कभी भी तसल्ली और इत्मीनान का दामन हमें अपने हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे खुदावन ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया और फिर भी उसने अपनी हकीकी तसल्ली और इत्मीनान से हमें आरास्ता जरूर किया। और तभी मसीहत इतनी मुश्किल सूरत हाल से गुजर कर भी आज भी एक रोशन सितारे की तरह चमक रही है। और इस बात के लिए भी हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रखिए कि हर दौर में ईमानदारों ने मुश्किल हालात में तसल्ली पाने का गुर जान लिया। और तसल्ली पाने का वो भेद, इत्मीनान का वो गुर क्या है कि जब हम अपने खुदावन की उस सलीबी मौत और उसके जी उठने और उसकी खाली कब्र को देखते हैं तो याद रखिए कि हमारे अंदर एक इत्मीनान डेवलप होता है। हमें एक कंटेंटमेंट की स्पिरिट जो है वो हासिल होती है कि हमें आज दीगर कौमों की तरह गम और मायूसी में जिंदगी बसर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक और बाइबल मुकद्दस की शहादत के मुताबिक हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है। वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है और वो रहती दुनिया तक जिंदा ही रहेगा, क्योंकि उसका आना यानी उसकी दूसरी आमद भी तय है। और जाहिर है कि जो जिंदा है वही दोबारा अपना ज़हूर जाहिर करेगा। और इस बात के लिए हम खुदा की तारीफ करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इस बात को भी हम याद रखिए कि हमारे लिए ये इंतहाई इत्मीनान की बात है कि हमारे खुदावन ने हमसे ये वादा किया और उसने हमें ये तसल्ली का पैगाम दिया कि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। कि यानी जहां वो है, और वो कहां पर है, वो आसमानों में
बाप की दाहिनी तरफ है। और आज याद रखिए कि जहां वो है और जो शख्स आज जमीन पर उस पर ईमान रखता और उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम करता है, तो यकीन कर लीजिए आज आपके लिए, आज मेरे लिए तसल्ली की ये उम्मीद और इत्मीनान का ये पैगाम मौजूद है कि जहां वो है वहां कल हम भी होंगे। और यकीनन इससे अच्छी और इससे खुशी की बात क्या है कि अगर हमारा आखिरी सफर जो है और फिर हमारी आखिरी मंजिल जो है वो खुदा की दानी जानिब ठहरने वालों में हो जाए, तो ये इससे बड़ा इस्तेकाक और इससे बड़ा इत्मीनान और इससे बड़ी खुशी एक ईमानदार की जिंदगी में और क्या हो सकती है। और आज दोस्तों हमें दीगर अक़वाम की तरह मायूस नहीं होना और ना ही हमें दुख उठाने की जरूरत है कि हम कहां जाएंगे। यकीन कीजिए कि जहां पर वो है, यानी जो मसीह का कौल अभी मैंने जिसकी अदायगी की कि जहां मैं हूं तुम भी हो, तो हम जानते हैं कि वो जो बाप के दाने हाथ बैठा है वो कभी भी हमें अब्दी मौत की तलखी के हवाले ना करेगा, बल्कि जहां वो है कल हम भी वहीं होंगे और खुदावन के जलील और कद्दूस तख्त को देख पाएंगे। हम उसके बुजुर्ग नाम की तारीफ करने वालों में होंगे और इसके साथ साथ हम खुदावन के दाने हाथ वालों में शुमार किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इस इत्मीनान और इस तसल्ली को अपनी जिंदगियों में बांध लें, क्योंकि हमारे खुदावन ने हमें यही पैगाम दिया है। खुदावन इस पैगाम के वसीले से आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन बुजुर्ग रहीम कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे बेटे अलमसीह की मार्फत हम तक तसल्ली का वो पैगाम पहुंचा है कि जिसने हमारी जिंदगियों को खुदा नए तौर पर उजागर किया है और रोशन कर दिया है। खुदावन ये तसल्ली, ये इत्मीनान हमेशा हमारी जिंदगियों का हिस्सा रहे, यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत और इसकी तसल्ली और इसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम दोस्त अहबाब जो इस वक्त मेरे साथ इस डिवोशन का हिस्सा हैं, इनकी ज़िंदगियों पर ठहरा रहे, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। और दोस्तों आज खुदा की तारीफ़ करते हैं और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और आज के लिए इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपके खिदमत में फिर से एक नई बात के साथ हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डिवोशन को ज़रूर शेयर करते रहा करें, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदा के पाक कलाम की आवाज़ को सुन सकें और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह किया करें। खुदा आप लोगों को बरकत दे, आमीन।